السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر مختلف ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں جس کے اندر بلاج ٹیپو سے متعلق ساری تفصیلات آپ کو ملتی ہیں۔ میری آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ احسن شاہ سے متعلق جو ہیں مختلف حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ احسن شاہ کیا تھا، کون تھا، کتنا عرصہ بلاج ٹیپو کے ساتھ اس کی دوستی رہی، کیسے وہ اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، کیسے احسن شاہ نے دوست بن کر دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، کس طرح سے احسن شاہ امیر بلاج کے قریب آیا، کس طرح سے اس نے شادی پر جانے کے لیے امیر بلاج کو شادی کی رات فون کیا اور اس کو وہاں پہ جانے کے لیے راضی کیا۔ یہ سارے حقائق آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، تو چلتے ہیں ان سارے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اہم فیکٹر احسن شاہ کا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کس حد تک اس کے تعلقات ہیں، یہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سارے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ احسن شاہ جس کی عمر اس ٹائم جو ہے وہ 27 برس ہے، پہلی دفعہ یہ امیر بلاج کے ساتھ 15 سال پہلے تقریباً 2010 کے اندر اس کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات اس کی اپنے مشترکہ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ لاہور کے اندر ان کی ہوئی۔ احسن شاہ شوقین تھا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا اس کو بہت شوق تھا۔ اس کو بہت زیادہ شوق تھا سیر و سیاحت کا، اور کئی دفعہ اس نے شمالی علاقہ جات کے اندر امیر بلاج کے ساتھ سفر کیا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک بہترین دوست کا ایک دوست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کرتا رہا۔ اس کے علاوہ جو احسن شاہ تھا اس کو بڑی گاڑیوں کا، پروٹوکول کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اس کے علاوہ ایک اہم فیکٹر جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ احسن شاہ کو فلاحی کاموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ایک سکول بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس سکول کے اندر جو غریبوں کے بچے ہیں وہ مفت پڑھا کریں گے۔ مختلف ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سردیوں میں غریب لوگوں کے درمیان رضائیاں بانٹ رہا ہوتا تھا، تو اس طرح کے کام کا بھی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ شوق تھا۔ اگر احسن شاہ کے سیاسی سفر کی بات کریں، سیاسی تعلقات کی بات کریں، تو احسن شاہ کے والد سید مظفر شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت لمبے عرصے تک چلتے رہے اور ان کا انتقال 1 سال پہلے ہوا۔ احسن شاہ کے والد سید مظفر شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر MP کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد احسن شاہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہا، اور حالیہ انتخابات کے اندر جب بلاول بھٹو نے NA 127 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو احسن شاہ مسلسل اس الیکشن کمپین میں سرگرم رہا۔ مختلف پوسٹرز جو کہ لاہور کے مختلف حلقوں کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں پہ احسن شاہ کی تصاویر پاکستان پیپلز پارٹی کے پمفلیٹس کے اوپر، اشتہاروں کے اوپر، بینرز کے اوپر آپ کو جگہ جگہ آویزاں نظر آتی ہیں۔ ان کے تعلقات بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات تھے، اور بہت ساری تصاویر یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ، ندیم افضل چند کے ساتھ، اور بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ۔ لیکن قتل کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے موقف لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ احسن شاہ کی دوستی کس طرح سے کیسے ہوئی بلاج ٹیپو کے ساتھ۔ تو جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا، ان کی دوستی کچھ مشترکہ دوستوں کے ساتھ 2010 کے اندر ہوئی، اور یہ دوستی جلد ہی بہت زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ تقریباً جتنا عرصہ گزرا اس دوران امیر بلاج ٹیپو اور احسن شاہ کی دوستی میں
लोगों ने देखा साथ इकट्ठे उठना बैठना, खाना पीना, सैर व सियाहत और मुख्तलिफ जो महफिलें होती थीं उसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आते थे। और एहसन शाह बड़ी जल्दी ही अमीर बलाज टीपू का एतमाद लेने में कामयाब हो गया, और इस हद तक एतमाद लेने में कामयाब हो गया कि एहसन शाह को अमीर बलाज टीपू के घर तक भी डायरेक्ट एक्सेस थी, और ये उन चंद दोस्तों में से एक था जो कि अमीर बलाज टीपू के घर डायरेक्ट जाते थे और इनको इजाज़त होती थी। 15 साल की इस दोस्ती के अंदर अमीर बलाज टीपू और एहसन शाह की दोस्ती इतनी करीब हो गई कि अमीर बलाज टीपू इनके ऊपर अंधा एतमाद करने लग गया। अमीर बलाज टीपू जब भी घर से निकलता तो एहसन शाह को उनकी हर मूवमेंट का पता होता था, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि अगर वो कहीं अकेला चला जाता तो अक्सर औकात वो एहसन शाह को फ़ोन करके वहाँ पे अपने पास बुला लेता था। एक तरह से साए की तरह हर वक्त एहसन शाह जो है वो अमीर बलाज टीपू के साथ मौजूद रहता था। अमीर बलाज टीपू का अंधा एतमाद और उसका भरम जो था वो एहसन शाह के ऊपर बहुत ज़्यादा था, और एहसन शाह इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगा। उसने बहुत सारे लोगों को अमीर बलाज टीपू के नाम के ऊपर धमकाया, और कहा जाता है कि उसने इस रेफरेंस से अमीर बलाज के धमकाने उसके नाम के ऊपर बहुत सारा पैसा भी कमाया, और बहुत सारे जो काम थे, नाजायज़ काम थे, वो वहाँ से उसने करवाए। लेकिन इन सारी बातों का कुछ हद तक अमीर बलाज टीपू को पता था, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती का भरम रखा और उनको कभी जो है वो किसी किस्म की उसको जो है वो परेशानी नहीं की। अब बात ये आती है कि क्या सहूलतकारी की एहसन शाह ने बलाज टीपू को कत्ल करने में। तो बड़े हैरान कुन और चौंका देने वाले जो है यहाँ पे इंकशाफात हुए। एहसन शाह बड़े अरसे से जो है वो गोगी भट्ट के साथ मिल चुका था। तो एक ख़ास प्लानिंग की गई। ख़ास प्लानिंग इस तरह से की गई कि उम्रे का उन्होंने उस दौरान जब उनके दोस्त का इनविटेशन उनको मिला, उस दौरान मुकम्मल जो प्लानिंग थी उसके साथ ये सऊदी अरब चला गया ताकि उसके ऊपर किसी किस्म का उनको शक ना हो, और वहाँ पे रहते हुए वो मुसलसल दोनों पार्टीज़ के साथ दोनों साइडों से वो खेलता रहा। अमीर बलाज टीपू जो कि अंधा एतमाद उसके ऊपर करता था, और जो एहसन शाह कह रहा था, जिस तरह से वो बातें करता था उसके ऊपर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था, लेकिन दर पर्दा एहसन शाह एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ चल रहा था और उसकी हर मूवमेंट के बारे में जो मुखालफिन है उनको वहाँ पे बता रहा था। कत्ल के बाद जब पुलिस ने बलाज टीपू के जो भाई हैं उनसे बलाज टीपू के दोस्तों के बारे में पूछा, तो बलाज टीपू के भाइयों ने जो उसके करीबी दोस्त थे उसकी जो लिस्ट प्रोवाइड की, जो लिस्ट फराहम की गई पुलिस को, हैरान कुन तौर पर उसके अंदर एहसन शाह का नाम नहीं था। क्या वजह है उसकी, क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं उसके अंदर। तो उसके बाद ये बात सामने आई कि उनके भाइयों ने और जो अमीर बलाज टीपू की मदर हैं उनके बयान के बाद ये बात सामने आई कि अमीर बलाज टीपू की जो वालदा थी वो एहसन शाह को एक बेटे का दर्जा देती थी। तो उनका एहसन शाह के ऊपर किसी भी किस्म का शक ना गया, क्योंकि पुलिस ने तो दोस्तों की तफसीलात मांगी थी और इनकी फैमिली जो है वो एहसन शाह को अपना फैमिली का एक मेंबर जो है वो कंसीडर करती थी। तो उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि एहसन शाह जो हर वक्त 15 साल से अमीर बलाज टीपू के साथ उठता बैठता खाता पीता उसका राजदान है, उसका दोस्त है, उसका बाजू है, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी पीठ में छुरा घोंपेगा और दोस्त इस हद तक जा सकता है। अब आखिर में हम इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं कि शादी पे किस तरह से उसको राज़ी किया गया और प्लानिंग के तहत क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एहसन शाह ने अमीर बलाज टीपू को दी। बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बात क्लियर हो चुकी है कि अमीर बलाज टीपू इस शादी के अंदर नहीं जाना चाहता था। उसको राज़ी करने वाला एहसन शाह था। उसने सऊदी अरब से उम्रे पे ये गया हुआ था, वहाँ से कॉल की और अमीर बलाज टीपू को रज़ामंद किया कि वो इस शादी के ऊपर ज़रूर जाए, क्योंकि वो उनका
जो शादी थी उनके करीबी दोस्त की थी और वो उनका दोस्त जो है वो इनसे नाराज़ भी हो सकता है। तो एहसन शाह के बहुत ज़्यादा इसरार के ऊपर और उसके जो चाल थी वो वहाँ पे कामयाब हुई और अमीर बलाज टीपू जो है वो शादी पे जाने के लिए रजामंद हो गया। शादी के जो दिन था उससे एक रात पहले एहसन शाह ने अमीर बलाज को फ़ोन किया और कहा क्योंकि ये एक फैमिली फंक्शन है इसीलिए बहुत ज़्यादा गार्ड्स लेके जाना मुनासिब नहीं है, और जब वो शादी की तकरीब में बैठे तो कोशिश करे कि गार्ड्स जो हों वो उसके साथ कम से कम होने चाहिए। तो जो एतमाद था अमीर बलाज टीपू का अपने दोस्त के ऊपर, वो उसकी बातों को बिल्कुल अंधा एतमाद करके मानता गया। और अगर ये प्लानिंग भी उसमें शामिल हो चुकी थी कि अगर किसी तरह से अमीर बलाज टीपू इस हमले में बच जाता है तो फिर क्या किया जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने एक मुकम्मल प्लानिंग की और इस प्लानिंग के अंदर एहसन शाह बिल्कुल 1000% उसके अंदर इन्वॉल्व था, क्योंकि उसको पता था कि अमीर बलाज टीपू शादी के बाद कहाँ जाएगा। अमीर बलाज टीपू शादी के बाद 3 जगहों के ऊपर जाना था और इस सारी इन्फॉर्मेशन का एहसन शाह को पता था और वो इस ताक में बैठे थे कि जब वो यहाँ से निकलेगा, अगर यहाँ से वो बच जाएगा तो 3 जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ पे अमीर बलाज टीपू ने जाना था, क्योंकि अमीर बलाज टीपू बहुत कम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता था और उसकी मूवमेंट का बहुत कम लोगों को पता होता था। बाज़ दफ़ा तो वो बिल्कुल मूवमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताता था, लेकिन एहसन शाह एक वहद उसका दोस्त था, जिगरी दोस्त था, जो कि जिगरी दोस्त एक सांप था जिसको उसकी हर मूवमेंट का पता होता था। तो उस रात भी ऐसे ही हुआ, 3 जगहों के ऊपर शूटर्स मौजूद थे। अगर यहाँ से अमीर बलाज टीपू बच जाता तो उसको फिर उन 3 जगहों के ऊपर टारगेट किया जाना था, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था तो जो उसका कत्ल है वो शादी की तकरीब के अंदर ही हो गया। ये भी कहा जाता है क्योंकि एहसन शाह को पता था कि अमीर बलाज टीपू जो है जब वो बाहर निकलता है तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए होता है। तो कातिल को ये इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी कि जब वो फायर करे तो ऐसी जगह के ऊपर करे कि वो उसकी डेथ हो जाए वहाँ पे। तो कातिल ने बड़ी होशियारी के साथ जब फायर किए तो वो तकरीबन गर्दन के ऊपर किए। तो इस तरह से जो अमीर बलाज टीपू है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। नाजरीन, ये सारे हक़ाइक़ थे एहसन शाह के मुतालिक। उसके अलावा मेरी अगली वीडियोस के अंदर इस कत्ल के हवाले से जितने भी हक़ाइक़ होंगे मैं उनके ऊपर अपनी इस वीडियो के अंदर पर्दा उठाऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि इस हवाले से जितनी भी मालूमात हैं वो आप लोगों को मेरे चैनल से मिलती रहें।